Camera on. Camera on. तो हम बात कर रहे थे वीक कन्वर्जेंस की। तो हमने डिफाइन किया अभी, कैसे किया? चलो इसको एडमिट करते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है? मुझे इस पे नहीं दिखता है स्क्रीन पे। Yes, sir. ओके, मैंने कहा था we say xn in a normal linear space, we say xn converges to x weakly inside x if these numbers, है ना, because x star जो है is a map from x to k that's linear and continuous because x star belongs to the dual. So if this is a sequence of numbers, if x, ये जो सारी की सारी sequences हैं, ये बहुत सारी sequences है ना, for जितने x stars हैं उतनी ये sequences बनेंगी। अगर ये सारी की सारी converge करें तो we say sorry, for all x star belonging to x star, तो हम कहते हैं ये कन्वर्ज करता है वीकली, या इसको हम ऐसे लिखते हैं xn कन्वर्ज टू x पर लिखते हैं वीक। इसके बाद हमने किया था अगर नॉर्म कन्वर्जेंस है, अगर n कन्वर्जेस टू नॉर्म कन्वर्जेंस बोलते हैं इसको, या सिंपली कन्वर्जेंस इन अ नॉर्मल लिनियर स्पेस, जिसका मतलब होता है बेसिकली ये नॉर्म जो है दिस गोस टू 0 as n approaches infinity। हमने किया था नॉर्म कन्वर्जेंस इंप्लाइज वीक कन्वर्जेंस, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी हम दिखा सकते हैं एक सीक्वेंस जो वीकली कन्वर्ज करती है लेकिन नॉर्म में वो कन्वर्ज नहीं करती। So let's do it. Now the converse need not be true. जो मैंने वहां लिखा था उसी के कंटिन्यूएशन में, for if I take x equal to LP where 1 is less than P is less than infinity, कोई भी LP ले लो, L2, L3, L4 जो भी तुम्हारी मर्जी हो, and let En be a sequence, En be the sequence 0 up to 0, 1, 0, so on and so forth, या ऐसे करते हैं, ये करते हैं ना, let En be the sequence inside LP where En is this unit vector and 1 is at the nth place, ठीक है? Now हमें पता है, हमें क्या पता है, इसका डुअल LQ होता है। Now if x star belongs to LQ, जब हमने डुअल्स किए थे, सॉरी, x star that is equal to, क्या होगा इसका, x star अगर belong करता है, मैंने x नाम लिया था, हाँ, x star that's equal to LP star, then we know that then there exists a vector belonging to LQ where 1 by P plus 1 by Q is equal to 1, it has this relation with the P such that, ये हमने किया था, x, तब हमने f नाम उसका रखा था यहाँ x star, क्योंकि हमने उसकी नेम थोड़ा बदल दिए थे ना, वहाँ f belong to x star, तो फिर हमने कहा नहीं x star में जितने ही एलिमेंट्स हैं उनको हम x star से रिप्रेजेंट करें, it's just a change of name। वहाँ हमने लिखा था f sub y of x is equal to summation xj yj, j runs from 1 to n or infinity, where x is equal to x1, x2, so on and so forth belongs to LP। तो इसका मतलब क्या होगा? अब चूंकि what do I get from here? अगर मैं तुम्हें okay, what would be x star of En? Now x star of En होगा, अब देखो अगर En में लेता हूं x की जगह,
इसमें तो एक ही एंट्री है nth पे 1, बाकी सारे के 0 है, इट वुड बी yn, है ना? So x star of en तो yn ही आएगा, which would go to 0 as n approaches infinity, because summation I runs from 1 to infinity, raised power p is less than infinity. और अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है, उसकी जो nth टर्म है, उसका मतलब yn raised power p must go to 0 as n approaches infinity, which can only happen if yn goes to 0 as n approaches infinity. So तो इसका मतलब ये हुआ, but I can write 0 as, यानी x star n approaches 0, which is equal to x star at 0. Because x star at 0 would be 0 for all x star belonging to x star. Because linear map sends 0 to 0 invariably. तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ, by our definition, उसका मतलब हुआ, therefore x star at en converges to x star at 0 for all x star belonging to x star, which implies that en converges weakly to 0. In a weak convergence, but norm en minus 0 p, norm of en p is equal to 1 for all n, which does not converge to 0, क्योंकि 1 है तो 1 ही है, it doesn't change. So hence en does not converge to 0. Although it converges weakly to 0, but it does not converge to 0. In a weak convergence need not imply norm convergence or convergence, but norm convergence does imply weak convergence. Okay, let's go. Okay, now let's think of x double star. Okay, now suppose I take a sequence. No, let's take a sequence. Let's take x star. अब हमने देखा ना, अभी हम x की बात कर रहे थे. X is a normal linear space. तो हमने define किया कि xn is a sequence inside x. So we say xn converges to some x weakly. उसका मतलब है that x star at xn as sequence of numbers converges to x star at x for all x star belonging to x, big X star, right? Now, अगर मैं लूँ अब x star is also a normal linear space, isn't it? So what would happen? तो अगर मैं अब कहूँ कि xn star is contained inside x star, then xn star at x star would converge weakly. उसका मतलब होना चाहिए, क्या मतलब होना चाहिए? कोई बता सकता है यहाँ पे? X double star at xn star as numbers would converge to x double star at x star for all x double star. मैंने इसमें कुछ नया नहीं किया, इसी को मतलब अप्लाई किया, इसी डेफिनेशन को for x star, because x star is also a normal linear space, the definition applies. So I can talk of weak convergence in x star, but I can talk of another convergence, what we call weak star convergence in x star. तो अब अगर मैं यहाँ पे x star पे खास करूँगा, मैं यहाँ the proper definition, ये तो इसकी weak convergence हो गई usually. Okay, now what? A sequence, चलो मैं definition लिखता हूँ. So okay, a sequence, ये थोड़ा सा तुम्हें शायद भारी लगे, doesn't matter. xn star contained in x star is said to converge in weak star mode. इसको हम weak star लिखते हैं, weak के ऊपर star लिखते हैं, to
x star belonging to x star if, अब थोड़ा ये अलग है, x n star at x converges to x star at x for all x belonging to x, and we write, हम लिखते हैं xn star converges weak star to x star. ठीक है, तो अब मैं जरा इसको फिर से थोड़ा सा रिव्यू अगर करें, इन केस यू आर स्टिल नॉट, मतलब आप सोए नहीं हो, अगर तुम जागे हुई हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अभी तक x जो है इट्स अ नॉर्मल लीनियर स्पेस, राइट? तो इसमें दो टाइप की कन्वर्जेंस हमने की, एक तो xn converges to x which is the same thing as norm xn minus x converges to 0. This is normal convergence. Then we have, this is convergence. Then there is weak convergence, जिसका मतलब है x star at xn, मैं लिख देता हूँ इसको, जरा रब करते हैं, ठीक से लिखेंगे। वीक कन्वर्जेंस का मतलब xn converges weakly to x, जिसका मतलब ये है कि x star at xn converges to x star at x for all x star belonging to x star. अब ले लो अपना ये x star, लेट मी ड्रॉप इट क्योंकि मुझे थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए। अब x star लेंगे हम, अब x star भी एक नॉर्मल लीनियर स्पेस है, तो इसमें भी वही कन्वर्जेंस होगी कि xn star converges to x star would be equivalent to norm of xn star minus x star converging to 0. तो फिर इस पे ये तो नॉर्मल कन्वर्जेंस होगी या स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस जिसको हम कहते हैं कभी कभी। देन देयर इज वीक कन्वर्जेंस। वीक कन्वर्जेंस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, xn converges weakly to x star x star, that would be equivalent to if x double star at xn star converges to x double star at x star for all x double star belonging to x double star. तो ये तो हो गई वीक कन्वर्जेंस। देन आई हैव, इसमें एक तीसरी कन्वर्जेंस भी होगी, व्हाट वी कॉल वीक स्टार कन्वर्जेंस। उसका मतलब है, हम कहते हैं xn star converges weak star to x star, उसका मतलब है if xn star applied to x as then we get a sequence of numbers converges to x star applied to x for all x belonging to x. तो डुअल में हमें तीन किस्म की कन्वर्जेंस मिल सकती है सीक्वेंसेस की तरह। तो पहली बात तो ये है, पहले तो ये है कि नॉर्म कन्वर्जेंस implies weak convergence, जो हमने किया, but and weak convergence implies weak star convergence, वो हम अभी करेंगे, वो तो बिल्कुल ऑब्वियस है। वो इसलिए ऑब्वियस है, सो अगर वीक कन्वर्जेंस है, सपोज ये हम कर चुके हैं, डन बिफोर, है ना। अब वीक कन्वर्जेंस डज इम्प्लाई वीक स्टार कन्वर्जेंस, तो वो बिल्कुल ही ऑब्वियस है। तो सपोज xn star converges weakly to x star, it would imply that x double star at xn star converges to x double star at x star for all x double star belonging to x star. Now thinking of identifying x as a subspace of x double star via the canonical, जो हमने किया था, हम सोच सकते हैं x is a subset of x, canonical embedding would imply
then x double n star would be xn star. It would be actually, it would imply that x double star at x is equal to, sorry, I should write it like this. X double star at x star should be equal to x star at x for some x belonging to x for all x star belonging to x star. So अगर मैं ये अगर इससे hence I can write hence x double star at xn star would be xn star at x goes to x star at x. Okay, ठीक है. For all x belonging to x, which implies that xn star converges to x star in the weak star mode. वो तुम्हारा होम असाइनमेंट या शायद मैं बाद में करा दूं. Weak star convergence need not imply weak convergence. या शायद मैं ये खुद ही करा दूंगा, नो इशू. चलो मैं ये खुद ही करा दूं. लेकिन तुम्हारा होम असाइनमेंट होगा show that for finite dimensional normal linear spaces, weak convergence is equivalent to, yeah, I should write weak convergence implies norm, क्योंकि दूसरे साइड से तो norm convergence, या चलो ऐसे ही लिखते हैं. यानी norm convergence implies weak convergence and weak convergence implies norm convergence. One side तो obvious है. अब इसका ये weak हम क्या बोल रहे हैं ना, इसका connection किसके साथ है? So that is with, should I go there? तुमने पढ़ा है ये weak topology? On a set, पढ़ा है? नो सर. नहीं पढ़ा है? नो सर. अरे तो प्रॉब्लम है फिर. उतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें जरूरी नहीं वीक टोपोलॉजी पता हो उस तरह से, लेकिन ये वीक जो हम यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं ये वहीं से आता है. तो वीक टोपोलॉजी का मतलब है, जब मैं कहता हूँ टोपोलॉजी इज वीक, तो कहने का मतलब क्या है? इफ आई हैव गॉट टू टोपोलॉजीज, अब एक्स कोई सेट है, इस पे बहुत सारी टोपोलॉजीज हो सकती है. कम से कम दो तो हमेशा होती है, एक तो पावर सेट, दूसरा ट्रिवियल टोपोलॉजी, इंडिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट, है ना. तो एक्स पे बहुत सारी टोपोलॉजीज हो सकती है ना. तो वी से tau 1 weaker than tau 2 if सर ये कोर्सर एंड फाइनर, हाँ कोर्सर एंड फाइनर को हम वीकर भी कहते हैं ना. कोर्सर को हम वीकर भी पढ़ा है सर. नहीं, मैं कह रहा हूँ इसका मतलब वीक टोपोलॉजी नहीं है, तो वीक लफ्ज कहाँ से आया है ना. अब वीक टोपोलॉजी हम कहते हैं, चलो मैं थोड़ा सा उसका हिंट देता हूँ. नाउ सपोज एक्स इज जस्ट अ सेट, ठीक है, और वाई जो है वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है. y is just x set है, वो टोपोलॉजिकल स्पेस है. टोपोलॉजिकल स्पेस का मतलब क्या है? इसके साथ एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स भी है जिसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज है. यानी लेट्स टेक एन एग्जांपल. x को मैं लेता हूँ a b c, कोई भी सेट. y लेता हूँ मैं मान लो 1 2 3, लेकिन ये काफी नहीं, ये तो खाली सेट है. तो मुझे बताना है टाउ क्या है ना. तो टाउ को मैं मानता हूं एक कलेक्शन phi y 1 1 2, इतना काफी है. तो दिस इज अ टोपोलॉजी, क्योंकि इनका यूनियन इसी में है, इंटरसेक्शन में. सो दिस डिफाइंस द टोपोलॉजी ऑन y, है ना. अब मैंने क्या किया,
मैंने x लिया और y लिया, इसमें है मेरे a b c, इसमें है 1 2 3, मैंने एक आर्बिट्ररी मैप लिया, चलो 1 a goes to 2, b also goes to 2 and c goes to 1. So this is a map, है ना, well defined map है, so it's a function, है ना एक function. Can you see, देख सकते हो ना तुम, I defined a map from x to y. हाँ अब y is a topological space, ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा इसके जो सेट्स है ना, ओपन सेट्स, मैं लूंगा अंडर दिस मैप f इनवर्स ऑफ o where o belongs to tau, इन सब का इनवर्स इमेज लूंगा अंडर f. तो पहले मैं लूंगा व्हाट इज f इनवर्स ऑफ y, ऑफ कोर्स इट वुड बी पूरी की पूरी x, है ना, इसका प्री इमेज क्या है, पूरा का पूरा x पूरी है. x. What is f inverse of 1? That is a and c, not a and 1 c, का तो c c है, only 1 c. का c है, 1 का c है. What is f inverse of 1 2? 1 2 का है a b c. It is full x, है ना. हम्म। और कोई सेट है यहाँ पे, है ना. No. f इनवर्स ऑफ 5 तो 5 ही है, of course. इसकी इनवर्स इमेज तो कोई हो नहीं सकती, खाली सेट है. तो मुझे एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स मिली x में, x में मुझे एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स मिली x c एंड 5. क्या ये टोपोलॉजी है x पे? ऑफ कोर्स. हाँ सर, ये है. और अगर तुम कोई भी मैप लेते ना, इस तरह से करोगे ना, जो भी तुम्हें मिलेगा ना इनवर्स इमेज यहाँ पे, वो एक टोपोलॉजी होगी x की. तो मैंने मदद ली इस फंक्शन की, किसी भी फंक्शन की, टू इम्पोज टू डिफाइन अ टोपोलॉजी ऑन x. अब मतलब टोपोलॉजी तो हम कैसे ही बना सकते हैं, लेकिन इस टोपोलॉजी का फायदा क्या है, अगर मैं अंडर दिस टोपोलॉजी f मैप को देखूं, तो इनवर्स इमेज ऑफ एवरीथिंग हियर, चलो इसका नाम हम देते हैं टाउ y, सो दिस इज टाउ x, टोपोलॉजी ऑन x. तो मैं कह सकता हूं f इनवर्स ऑफ o बिलोंग्स टू टाउ ऑफ x, ये तो मैंने ही बनाया ना इस टोपोलॉजी को, फॉर ऑल o बिलोंगिंग टू टाउ ऑफ y, इट इंप्लाइज दैट f इज कंटिन्यूअस. क्योंकि ये ओपन सेट है यहाँ का, और वो इसका इनवर्स इमेज ओपन है. तो जब मैं इस तरह से करता हूँ ना टोपोलॉजी डिफाइन विद मतलब इस तरीके से, तो ये जो f है जिसकी मैंने मदद ली टोपोलॉजी क्रिएट करने में, ये ऐसी बन जाती है सच दैट f इनवर्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यू, है ना. तो ये ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस बन जाएगी विद दिस टोपोलॉजी. तो इसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी जनरेटेड बाय f, कहेंगे ना f ने इसको जनरेट किया ना, है ना. वेरी गुड. हाँ सर. बिल्कुल. मैंने क्या किया, मैंने लिए इनवर्स इमेज यहाँ के ओपन सेट्स के, यहाँ उनको जमा किया, अपने इनवर्स इमेज को, उसको बनाया एक टोपोलॉजी. सो नाउ व्हाट आई डू, अब मुझे इससे थोड़ा क्या बोलते हैं ना एनकरेजमेंट मिला, तो मैं कहूँगा अच्छा ऐसे तो मैं बहुत सारी मैपिंग्स खड़ी कर सकता हूँ. मान लो मैंने एफ आई ली और कोई भी सेट लिया बड़ा सा, और कोई भी सेट लिया वहां, ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है ना. अब मैंने बहुत सारी मैपिंग्स ली, और यहाँ पे जो ओपन सेट्स है ना, उसकी प्री इमेजेस ली यहाँ पे, वो मतलब अभी मुझे नहीं पता, है ना. तो मैंने उनको कलेक्ट किया. क्या किया? ओपन सेट्स को कलेक्ट किया. अब वो उनका यूनियन टोपोलॉजी होगा ये जरूरी नहीं है. क्यों? नहीं है, क्योंकि यूनियन ऑफ टोपोलॉजीज नीड नॉट बी अ टोपोलॉजी, ये तो तुम्हें पता ही है ना. हाँ इंटरसेक्शन होता है. इंटरसेक्शन होता है, ठीक है ना. लेकिन मैं इंटरसेक्शन के बजाय एक दूसरा रास्ता इख्तियार करूंगा जो इंटरसेक्शन जैसा ही है, लेकिन तुम शायद उसको उस तरह से ना देखो. तो एफ आई से मुझे यहाँ बहुत सारी टोपोलॉजीज मिली. टोपोलॉजीज मीन्स बहुत सारी कलेक्शन ऑफ सेट्स, कलेक्शन ऑफ सेट्स, लेट मी कॉल देम टाउ आईज. ठीक है, मिली ना इसमें. अब मैंने इनका यूनियन लिया, ये टोपोलॉजी नहीं है, मत है यूनियन. नो सर, ये लेकिन टोपोलॉजी नहीं. this can generate a topology on X. This can, how?
सो वो इस तरह से क्योंकि ये होगा। फंक्शन होगी। नो नो नो, मैं इसको एक सब बेसिस मान सकता हूँ। यानी मैं क्या लूंगा, सब बेसिस का मतलब ये है, ये जो एक कलेक्शन बनेगा ना, लेट्स कॉल इट बिग टी। अब टी को मैं क्या करूंगा, आई टेक ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ टी, और मान लो वो बन गया बी। चलो उसका नाम मैंने दिया ऑल, उसका नाम किया मैंने बी। अब बी को मैंने क्या किया, देन आई टेक ऑल पॉसिबल यूनियंस ऑफ बी। ठीक है, और जो ऑल पॉसिबल यूनियंस ऑफ बी होगा, ये मेरा होगा टोपोलॉजी, जिसका नाम मैं कुछ ऐसे रखूंगा, इस तरह का टी। देन टी इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स which contains this T. In fact, it is the smallest topology on X which contains this union. ये हमने किया था, मैंने शायद पढ़ाया था कि कोई भी कलेक्शन ऑफ सेट्स है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट है, तो उससे हम जनरेट कर सकते हैं टोपोलॉजी बाय टेकिंग इट एज अ सब बेसिस ऑफ दैट टोपोलॉजी। सब बेसिस का मतलब उसके सारे फाइनाइट इंटरसेक्शन ले लो, वो बन जाएगी बेसिस ऑफ दैट टोपोलॉजी। फिर बेसिस के सारे पॉसिबल यूनियंस लो, तो तुम्हें मिल जाएगा एक टोपोलॉजी ऑन एक्स व्हिच हैज दोस प्रॉपर्टीज। तो ये टोपोलॉजी होती है स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी एक्स व्हिच कंटेन्स दैट ओरिजिनल कलेक्शन ऑफ सेट्स। अब इसका फायदा क्या है, देखो ये टाउ आई कंटेन करेगी तो एफ आई कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना, बिकॉज इट विल कंटेन, क्योंकि यूनियन को कंटेन करती है, सो इट वुड कंटेन टाउ वन would be contained in this script tau, तो it would also contain tau 2, it would also contain सारे के सारे taus। अब क्योंकि ये tau 1 को contain करेगी तो f1 continuous होगा, tau 2 को contain करेंगी तो f2 भी continuous होगा। तो ये जो टोपोलॉजी होगी, it would be so smallest topology on x such that with respect to which all fi's are continuous। ठीक है, तो इस तरह से हम जनरेट करेंगे टोपोलॉजी on x under which all fi's are continuous। so इसको हम बोलते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं weakest topology generated by tau i's, but tau i's are generated by fi's by this family of functions। or under this topology all fi's are continuous because this topology contains all tau i's। ठीक है, तो इसी का नाम है, इसी टोपोलॉजी जो वीकेस्ट टोपोलॉजी जनरेटेड बाय एफआई है ना, इसको हम कहते हैं वीक टोपोलॉजी जनरेटेड बाय दिस कलेक्शन ऑफ मैपिंग्स। तो ये अच्छे से तुम दिमाग में डाल दो, ये फंक्शनल एनालिसिस में बड़ी ही फंडामेंटल इंपॉर्टेंस की है वीक टोपोलॉजी। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मेरे पास ये है, अब सोचो तुम एक्स नॉर्मल लीनियर स्पेस नहीं है थोड़ी देर के लिए, एक्स इज जस्ट अ सेट। ठीक है, अब ये जो केज हैं, it is a topology, it's a normal linear space। k मतलब k could be either set of real numbers or set of complex numbers, so k is a topological space। अगर ये topological space है, then ये जो x star है, x star are functions from x to k, है ना, because x star is equal to bxk, right? So whatever their properties, they are essentially functions, they are functions from x to k। and x को अगर मैं टोपोलॉजिकल स्पेस मान लूं और इसको जस्ट सेट मान लूं थोड़ी देर के लिए, सो ये जो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हैं, it would impose a topology on x। x star is a collection of functions, as a collection of functions would create a weak topology on x
तो उसको हम बोलते हैं वीक टोपोलॉजी। वही ना जो ये कलेक्शन ऑफ फंक्शंस जनरेट करें। अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं एक्स इज अ नॉर्मल लीनियर स्पेस, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज द वीक टोपोलॉजी ऑन एक्स। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही करते हैं। इसको तुम फिर से वीक टोपोलॉजी को ठीक से देख लेना। टोपोलॉजी में हालांकि मैंने बोला ना, लेकिन आगे चल के तुम्हें ये बहुत यूज करना है वीक टोपोलॉजी, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं कर दूं। ओके, लेट्स एंड इट हियर। थैंक यू। ओके सर। 18 स्टूडेंट्स हैं।